الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواہ مسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں میں نبیوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا، چن لیا، سارے انسانوں سے افضل قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہیں بنائی، مواقع بنائے، اور تمام جگہوں میں اللہ نے مسجدوں کو چن لیا اور مسجدوں کو ساری زمین میں سب سے افضل جگہ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال کے مہینے بنائے اور مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو منتخب کیا اور رمضان کو سارے مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا۔ اللہ نے راتیں بنائی اور تمام راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب قدر کو منتخب فرمایا، چن لیا، اور شب قدر کو تمام راتوں میں سب سے افضل رات قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن بنائے اور دنوں میں عشر ذی الحجہ کو، دنوں میں یوم عرفہ کو اللہ نے منتخب فرمایا اور سال کے تمام دنوں میں یوم عرفہ کو سب سے افضل دن قرار دیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب خالق ہے، رب پیدا کرتا، رب پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے منتخب کر لے، جس کو چاہے افضل قرار دے، جس کو چاہے چن لے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جس کو چاہے منتخب کر لے، چن لے، جس کو چاہے افضل قرار دے۔ اللہ اس کا مالک ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ رب جو خالق ہے تمام چیزوں کا، وہ جسے چاہے
दूसरे पर फजीलत और बरतरी अता फरमाए। अल्लाह जो चाहे करने वाला है, अल्लाह का फैसला हमेशा आदल इंसाफ पर होता है। मेरे भाई, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस महीने में अनकरीब दाखिल होने वाले हैं, वो साल के तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना, नुज़ूल कुरान का महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, जिसमें नेकियों का मौसम बहार होता है और सारी दुनिया में एक अजीबो गरीब खुशी फैला दी जाती है, मुसर्रत फैला दी जाती है, अल्लाह की रहमत आम होती है, बरकत आम होती है। उस महीने में, उस अजीम महीने में अनकरीब हम और आप दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको माह रमजान नसीब फरमाए और उस रमजान की खैर व बरकत से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। उस महीने, उन दिनों, उन रातों की कद्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी खामियों, हमारी कोताहियों, हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमाए और अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से अल्लाह इबादत करने, इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, आज की खुतबे जुमा में मैं आपके सामने माह रमजान की खुसूसियात क्या हैं, माह रमजान की फजीलत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसकी अजमत क्या है, इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, माह रमजान की खुसूसियात में से एक अजीम खुसूसियत, सबसे अजीम खुसूसियत ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम बंदों पर इस महीने के रोजों को फर्ज करार दिया है। इस महीने में तमाम मुसलमानों पर, अहले ईमान पर वाजिब करार दिया है, फर्ज करार दिया है कि इस महीने में क्या रोजा रखें, इस महीने में रोजा रखें। ये साल के दीगर महीनों के मुकाबले रमजान को ये खुसूसियत हासिल है कि रोजा जो एक अहम तरीन इबादत है, इस्लाम का चौथा रुकन है, इस रोजे को, इस इबादत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह इस महीने के साथ खास रखा और हर मुसलमान पर वाजिब करार दिया कि वो माह रमजान में रोजा रखे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे लिख दिए गए हैं, फर्ज करार दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये कोई नई इबादत तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं की गई है, बल्कि तुमसे पहले जितने नबी और जितनी उम्मतें, जितनी कौमें दुनिया के अंदर आई, उन सारी उम्मतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजों को फर्ज करार दिया। एक ऐसी इबादत है, रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इबादत को तमाम बंदों पर फर्ज करार दिया। पिछली तमाम उम्मतों पर, कौमों पर अल्लाह ने रोजा रखना फर्ज करार दिया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह को तुम्हारी भूख प्यास की हाजत नहीं, अल्लाह बंदों को तकलीफ देना नहीं चाहता, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे भाई, अल्लाह इस रोजे से क्या चाहता है? ये चाहता है कि बंदे के दिल में तकवा पैदा हो, खौफ इलाही पैदा हो, खशीयत इलाही पैदा हो और बंदा अल्लाह से डरने का आदी बन जाए, अल्लाह से खौफ खाए, उसके दिल में खशीयत इलाही का मादा और जज्बा पैदा हो, अल्लाह से खौफ खाए। चुनांचे आप देखें, रोजेदार तन्हाई में होता है, लोगों की नजरों से दूर होता है, वो चाहे तो अपनी प्यास को बुझा ले, चाहे तो पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा ले, चाहे तो खाना खाकर अपने भूख को खत्म कर ले, मिटा ले, लेकिन अल्लाह के खौफ से उसके दिल में ये एहसास होता है 12 घंटा हर दिन, ये एहसास होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। वो तन्हाई में और कादिर होने के बावजूद वो खाने पीने और शहवत की चीजों से वो बाज रहता है, इस डर से कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह इस खौफ इलाही पर, खशियत इलाही पर, तकवा पर बंदों की तरबियत करने के लिए और बंदों को तकवा पर ट्रेनिंग देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे को फर्ज करार दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। और इसी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुम, जो शख्स तुम में से इस महीने को पाले, फलयसुम, उसे चाहिए कि वो इस महीने में रोजा रखे, इस महीने में रोजा रखे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे को, कुछ लोगों को अल्लाह ने रोजे से मुस्तस्ना करार दिया है, कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजा रखने से क्या है, मुस्तस्ना करार दिया है। कुछ लोगों के लिए रोजा रखना वक्ती तौर से माफ कर दिया गया, कुछ लोगों के लिए रोजा रखना हमेशा के लिए माफ कर दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो शख्स मरीज हो, जो शख्स इस महीने को पाए रोजा रखे, अलबत्ता वो शख्स जो मरीज है, बीमार है। और मरीज की तफसील अहादीस के अंदर आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस आयत की तफसीर में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मरीज में दाखिल किया है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला औरत को और दूध पिलाने वाली औरत को भी मरीज में दाखिल किया, मरीज की किस्म में दाखिल किया कि अगर हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत अगर मुश्किल महसूस कर रही है, रोजा रखना मुश्किल महसूस कर रही है, तो उसके लिए क्या है, रोजा रखना माफ है और वो बाद में उन रोजों की कज़ा करेगी, बाद में उन रोजों की कज़ा करेगी। ऐसे ही कोई शख्स जो वक्ती तौर से बीमार हो गया, उसे इलाज की जरूरत पड़ गई और उसके लिए रोजा रखना मुश्किल हो गया, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे दिनों में क्या है, रोजों की कज़ा करेगा। ऐसे ही वो शख्स जो दायमी मरीज है, जो हमेशा के लिए मरीज है, जो दायमी मर्ज का शिकार हो चुका है और उसके लिए रोजा रखना मुश्किल है और आइंदा सेहत लौटने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे शख्स भी रोजा माफ है और उसके लिए हुक्म है कि वो हर रोजे के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाए। ऐसे ही वो बूढ़ा शख्स जो इंतहाई बूढ़ा हो चुका है, कमजोर लागर हो चुका है, उसके लिए रोजा रखना मुश्किल और दुश्वार है। और अल्लाह खूब जानता है किस मरीज के लिए, किस बूढ़े शख्स के लिए रोजा रखना दुश्वार है, अल्लाह खूब जानता है। हर एक के पास कितनी इस्तात और ताकत है, अल्लाह खूब जानता है। तो वो बूढ़ा शख्स जिसके पास रोजा रखने की ताकत नहीं है और सेहत के, तंदुरुस्ती के लौट आने की उम्मीद भी नहीं है कि वो आइंदा सेहतयाब होगा या की ताकत जिस्म में आएगी और वो इस काबिल हो सकेगा कि रोजा रख सके, ऐसे शख्स से रोजा कुल्ली तौर पर माफ है और उस पर है कि वो हर रोजे के बदले में एक मुस्लिम को खाना खिलाए। ऐसे वो शख्स जो सफर पे है, उसके लिए भी रोजा कज़ा करने की रुख्सत है, रोजा तोड़ सकता है और बाद में क्या, दूसरे दिनों में उन रोजों की कज़ा करेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उस रोजे को पूरा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, ऐ बंदो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अल्लाह तुम्हें भूख और प्यास में मुब्तला करके तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अगर तुम बीमार हो, सफर पे हो, परेशानी में हो, तुम्हारे लिए छूट है कि तुम रोजा तोड़ सकते हो, लेकिन बाद में कज़ा कर लो। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता है। वलितुकमिलुल इद्दा, अल्लाह ये चाहता है तुम महीने की तादाद, रोजों की तादाद 30 दिन ये तुम मुकम्मल कर लो। अगर बीमार हो, सफर पे हो, रोजा नहीं रख सकते हो, कज़ा तोड़ दो और बाद में क्या, रोजों की कज़ा कर लो। इस तरह महीने के अय्याम 30 दिन क्या है, तुम मुकम्मल कर लो। वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, इस बात की कि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे भाई, इन दलाइल से, इन आयात से मालूम हुआ रोजा फर्ज है। और सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस, आपने रमजान के रोजे को इस्लाम का चौथा रुकन करार दिया। इस्लाम की इमारत जिन सतूनों पर कायम है वो 5 है, उनमें से चौथा सतून जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है वो क्या है, रमजान का रोजा रखना। मेरे भाई, तो माह रमजान की पहली खुसूसियत यह है कि इस महीने के दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर रोजे को फर्ज करार दिया। और माह रमजान की दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने में कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया गया, कुरान उतारा गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लौह महफूज से पूरा कुरान, मुकम्मल कुरान आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया रमजान के महीने में। और रमजान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लौह महफूज से, 7वें आसमान में लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान नाजिल फरमाया। और बैतुल इज्जा, जो अल्लाह का घर 7वें आसमानी दुनिया पर है, बैतुल इज्जा में कुरान रखा गया। और फिर हस्बे जरूरत अल्लाह के हुक्म से 23 साल में कुरान गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन नाजिल होता रहा। ऐसे मेरे भाई, कुरान के नाजिल होने की इब्तिदा और शुरुआत रमजान के महीने में हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिली, पहली बार आपके पास वही आई, रमजान के महीने में आई। कुरान की पहली चंद आयतें नाजिल हुई, रमजान के महीने में नाजिल हुई, सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें। तो इस तरीके से नुज़ूल कुरान का आगाज रमजान के महीने में हुआ। मुकम्मल कुरान का नुज़ूल लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर बैतुल इज्जा के अंदर पूरा कुरान रमजान के महीने में उतारा गया। और रमजान का ताल्लुक कुरान से इस एतबार से
इंतहाई गहरा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना मुकद्दस कलाम नाज़िल करने के लिए जिस महीने को मुंतखब किया वो महीना रमजान का महीना था। ऐसे ही मेरे भाइयों, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास हर रमजान जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे और आप उन्हें कुरान सुनाया करते थे। आप उन्हें कुरान सुनाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आते हैं हर रमजान में और आप उन्हें कुरान सुनाते हैं। और जिस साल आपकी वफात हुई उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में आपने 2 बार कुरान सुनाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। तो ये रमजान का महीना कुरान का महीना है। रमजान का महीना कुरान का महीना है। और माह रमजान की दूसरी खुसूसियत यह है कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान मुकद्दस कलाम नाजिल फरमाया। और सही बुखारी सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस है, क़यामत के रोज रोजा और कुरान, अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, रोजा और कुरान दोनों एक साथ रब की बारगाह में हाजिर होंगे और बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। इस हदीस से भी मालूम होता है कि रोजा और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि इस हदीस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान और कुरान दोनों को एक साथ बयान किया, कहा दोनों आएंगे रब की बारगाह में। कौन कौन? रोजा और कुरान दोनों रब की बारगाह में आएंगे। यशफाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन बंदे के लिए रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा अल्लाह इस बंदे ने मेरी खातिर शहवत और भूख खाने पीने की चीजों को इसने छोड़ दिया था, अल्लाह इस बंदे के बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा अल्लाह इसने मेरी खातिर रातों को जगा कुरान पढ़ा, तेरा कलाम पढ़ा, अल्लाह तू इस बंदे के बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। फयुशफ़ाआने, और दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। आमाल सिफारिश करेंगे, नमाज सिफारिश करेगी, इस्लाम सिफारिश करेगा, रोजा सिफारिश करेगा, कुरान सिफारिश करेगा। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि रोजा और कुरान का आपस में इंतहाई गहरा ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान के महीने को मुंतखब फरमाया कुरान नाजिल करने के लिए। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, माह रमजान की दूसरी खुसूसियत है कि महीना नुज़ुल कुरान का महीना है। माह रमजान की तीसरी खुसूसियत यह है कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने की रातों से बेहतर है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने की रातों से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान से पहले सहाबा को जमा किया और कहा कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कद जाअकुम शहरुन अज़ीम। दूसरी रिवायत में, क्या है मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साफ़ होने वाला है, एक अजीम महीना आ चुका है। और याद रखो इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने की रातों से बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले ही या आगाज रमजान में, शुरू रमजान में अपने सहाबा को शब कद्र पाने की ताकीद कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 महीने की रातों से बेहतर है। मेरे भाई, तो इस तरीके से माह रमजान की तीसरी खुसूसियत यह है कि माह रमजान के अंदर एक रात ऐसी है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो शब कद्र 1000 महीने की रातों से बेहतर है। इस माह रमजान की चौथी खुसूसियत यह है कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरकश जिनों को और शैतानों को कैद कर देता है। ये वाहिद महीना है पूरे साल में जिस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरकश जिनों और शैतानों को कैद फरमा देता है। और ये शैतान, ये जिन, ये हमारे लिए इम्तिहान है, ये आजमाइश की चीज है। अल्लाह ने इन्हें छूट दे रखा है और हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश की चीज है। अल्लाह ने इन्हें छूट दे रखा है जिस तरह ये बंदों को गुमराह करते हैं। लेकिन रमजान का महीना जब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें कैद कर देता है, सरकश जिनों को और शैतानों को कैद कर दिया था इस महीने के अंदर। माह रमजान की पांचवी खुसूसियत यह है कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम का कोई दरवाजा खुला नहीं होता और जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं होता। मेरे भाई, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आप फरमाते हैं इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमजान की पहली रात आती है, जिस रात में अक्सर लोग गाफिल होते हैं, जिस रात की तरावीह अक्सर लोगों से छूट जाती है, जिस रात की आमद की खबर अक्सर लोगों को नहीं होती, जिस रात में अक्सर लोग लापरवाही और गफलतों में होते हैं, जिस रात में अक्सर लोग मार्केटिंग करने में उस रात की मुबारक औकात और लम्हात को जाया करते हैं, उस रात में हाल क्या होता है जन्नत का। उस रात में हदीस फरमाते हैं जब रमजान की पहली रात आती है, जब रमजान की पहली रात आती है, चांद निकलता है, उस रात में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुल जन्नह वलम युगलक मिनहा बाब, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं
उनका कोई दरवाजा बंद नहीं होता। वो उग़लिक़त अब्वाबुन्नार वलम युफ्तह मिन्हा बाब, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, उनमें से कोई दरवाजा खुला नहीं होता। व सुलसिलतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न, और शैतानों और सरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है। और व युनादी मुनादिम मिनस समा, आसमान से ऐलान करने वाला फरिश्ता रमजान की पहली रात, चांद रात, ये ऐलान करता है अल्लाह के हुक्म से। क्या ऐलान करता है? या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, ए भलाई के चाहने वालों आगे बढ़ो, ए भलाई के ख्वाहिशमंदो, ए नेकियों के हरीस रहने वालों, ए नेकियों के शायकीन, ए नेकियों के तलबगारों, आगे बढ़ो। रहमतों का महीना आ गया, बरकतों का महीना आ गया, शैतानों को कैद कर दिया गया है। अब इनके लिए, शैतानों के लिए तुम्हें बहकाना आसान नहीं है, और तुम आसानी के साथ नेकियों की तरफ बढ़ोगे। और आप देखें मेरे भाइयों कि रमजान के महीने में वो शख्स जो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान के महीने में वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। वो शख्स पूरे साल कुरान खोलकर चंद आयतें तिलावत नहीं किया था, रमजान आते ही वो कुरान कम से कम एक बार खत्म करता है। वो शख्स जो पूरे साल गुनाह किया करता था, रमजान आने के बाद, रमजान में दाखिल होने के बाद उसे गुनाह कम हो जाते हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, सरकश जिनों और शयातीन को कैद कर दिया गया। और आसमान से फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए भलाई के चाहने वालों आगे बढ़ो, व या बाग़िय शर्र अक़सिर, और ए शर के तरफदारों, ए शर के चाहने वालों, ए बुराइयों से मोहब्बत करने वालों, अक़सिर, रुक जाओ। यह हदीस सूरह तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। मेरे भाई, इससे माह रमजान की 2-3 खुसूसियात मालूम हुई। एक खुसूसियत ये कि इस महीने में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, सरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है, जन्नत दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे ही माह रमजान की एक खुसूसियत ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा करता फरमाता है। और इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने उम्रा, सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस, आप फरमाते हैं रमजान में उम्रा का सवाब तअदीलु हज्जा व फी रिवायत अव हज्जतुन मई, रमजान में उम्रे का सवाब हज के बराबर। हज पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अजर व सवाब रखा है, वो सवाब रमजान में उम्रा करने पर अता फरमाता है। और एक दूसरी हदीस में है हज्जतुन मई, मेरे साथ हज करने के बराबर, नबी के साथ हज करने पर जो सवाब और अजर अल्लाह अता फरमाता है, वो अजर सवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला रमजान में उम्रा करने पर रखा है। मेरे भाई, अल्लाह इंसाफ करता, अल्लाह बेहिसाब अजर सवाब अता फरमाता है। हम नबी का जमाना नहीं पाए, अल्लाह के बेशुमार बंदे नबियों का जमाना नहीं पाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसे आमाल रखे हैं, ऐसे मुबारक मौसम हमारे लिए रखे हैं, जिन मौसमों में वो अमाल करके हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं, वो सवाब पा सकते हैं जो सवाब नबियों के साथ हज करने पर, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने पर अल्लाह ने रखा। गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यक़ूलुल्लाह सुब्हानहु व तआला, आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम फ़इन्नहु ली यदअु तआमहु व शहवतहु मिन अजली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि सिवाय रोजा के मैं अपने बंदे को, रोजेदार बंदे को जितना चाहूंगा अजर सवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने रोजे के सवाब की कोई हद मुकर्रर नहीं की, बकिया अमाल के सवाब की हद मुकर्रर की कि इंसान के एक अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ने इसके सवाब की कोई हद मुकर्रर नहीं की, कहा जितना चाहूंगा बंदे को नवाजूंगा, जितना चाहूंगा बंदे को नवाजूंगा। मेरे भाई, बदनसीब हैं वो लोग जो इस माह रमजान की कदर नहीं करते, जो इस मुबारक महीने में रोजे नहीं रखते। और याद रखें, हदीस आप फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत, फरमाया आपने, अगर कोई शख्स बगैर किसी शरई उज़्र और बगैर किसी मर्ज और बीमारी के रमजान का एक रोजा भी तर्क करता है, अगर उस एक रोजे के बदले वो पूरे साल रोजा रखे, वो सवाब हासिल नहीं कर सकता जो अल्लाह ने रमजान के एक रोजे पर सवाब रखा है। तो माह रमजान की खुसूसियात में से ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला
इस महीने में किए गए अमल का सवाब कई गुना बढ़ा कर अता फरमाता है। आम रोजों के मुकाबले में माह रमजान में रखे गए रोजों का सवाब कई गुना है। फरमाया आपने अगर रमजान के एक रोजे के बदले में वो पूरे साल रोजा रखे उतना सवाब उतना अजर नहीं हासिल कर पाएगा जो अल्लाह ने रमजान के एक रोजे पर रखा है। मेरे भाई, माह रमजान की एक खुसूसियत ये भी है कि इस महीने में जो सुकून, जो खुशी मैसर होती है, वो खुशी वो सुकून साल के बकिया महीनों में हासिल नहीं होती है। जो खुशी माह रमजान में बंदों को हासिल होती है वो खुशी कभी हासिल नहीं होती। हदीस में फरमाते हैं इन्ना लिस्साइमी फरहतान फरहतुन इंदा फित्रे व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी। रोजेदार को दो खुशियां हासिल होंगी। एक खुशी दुनिया में इफ्तारी के वक्त, गौर करें आप, मामूली दस्तरखान है, चंद खजूर और पानी, मामूली चीजें खाने पीने की दस्तरखान पे रखी हुई हैं। रोजेदार को इफ्तार के वक्त उस दस्तरखान पर जो सुकून, जो इत्मीनान, जो खुशी मैसर होती है, हासिल होती है, मेरे भाई दुनिया के किसी अजीम से अजीम दस्तरखान पर वो खुशी हासिल नहीं होती है। वो फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी, और रोजेदार को दूसरी खुशी उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, और रब से मुलाकात करेगा रोजा सिफारिश के लिए हाजिर होगा, रब से मुलाकात करेगा, अपने सामने रोजे का अजर सवाब देखेगा, नेकियों का जखीरा देखेगा, रब के सामने होगा, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ देखेगा कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में एक दरवाजा खास कर दिया है जिसका नाम बाबुर रैयान है। इस दरवाजे से, हदीस से फरमाते हैं आप, उस दरवाजे से ऐलान होगा कि आज इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। जब रोजेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे जन्नत में, फिर वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उससे कोई और दाखिल नहीं होगा। जब ये अजर सवाब, ये मकाम रोजेदार अपने रब के पास देखेगा, उसे जो खुशी, जो फरहत, जो सुकून मैसर होगा, जो खुशी हासिल होगी, वो खुशी किसी और को हासिल ना होगी। तो मेरे भाई, रमजान का महीना खुशियों का महीना है, रहमतों का महीना है, मगफरत का महीना है, सब्र का महीना है। इस महीने के अंदर हम सब्र करें। रोजेदार को चाहिए कि वो अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करे। एक तो रोजे की तकलीफ पर सब्र करे, इबादत पर सब्र करे, तकलीफ पर सब्र करे, ऐसे साथ साथ उन लोगों के साथ भी सब्र करे। अस्सियामु जुन्ना, हदीस में फरमाते हैं अस्सियामु जुन्ना, रोजा ढाल है। रोजा क्या है? ढाल है। जिस तरह आदमी ढाल के जरिए अपने जिस्म की हिफाजत करता है दुश्मन से, ऐसे रोजा ये ढाल है। इस रोजे के जरिए अपने दुश्मन शैतान से अपने आप की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें। और हदीस फरमाते हैं वइज़ा काना यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफथ वला यसखब फइन साबहु अहदुन औ क़ातलह फलयकुल इन्नी साइम, रवाहुल बुखारी। सी बुखारी की हदीस, फरमाया आपने जब तुम में से कोई शख्स रोजे के दिन हो, रोजे की हालत में हो, जब किसी के रोजे का दिन हो, रोजे की हालत में हो, तो न चीखे चिल्लाए, न गाली गलौज बके, न लड़ाई झगड़ा करे। अगर कोई शख्स उसे गाली दे रहा हो, अगर उसे कोई झगड़ा कर रहा है, फलयकुल, तो चाहिए कि वो कहे इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। ये कहकर जवाब दे। इस जवाब के जरिए अपने दुश्मन को क्या है? खामोश करे। गाली का जवाब गाली से ना दे, बहस का जवाब बहस से ना दे, लड़ाई झगड़े का जवाब लड़ाई झगड़े से ना दे, बल्कि सब्र करे और कहे भाई मैं रोजे से। और याद रखो, रोजा सिर्फ भूख खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि रोजा मेरे भाइयों दरअसल खाना पीना तो मुबाह और हलाल चीज है। खाना पीना मुबाह और हलाल, दीगर अय्याम में, दूसरे महीनों में और रमजान की रातों में खाना पीना हलाल है ना। ये मुबाह चीजों से इस्लाम ने हमें रोका मखसूस वक्तों में। लेकिन हराम चीज, बहुत सारे लोग खाने पीने से अपने आप को बचाते हैं, ठीक है, ये तो वाजिब है, वरना रोजा टूट जाएगा, जरूरी है। लेकिन जो हराम चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, उनसे अपने आप को नहीं बचाते हैं। मुबाहात से अपने आप को तो बचाते हैं, खाना पीना नहीं खाते रोजे की हालत में, और वाजिब है नहीं खाना चाहिए, वरना रोजा टूट जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा वाजिब यह है कि हम अपने आप को हराम से बचाएं। इससे ज्यादा अहम
اور واجب اور فرض ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچائیں، اپنی زبان کو حرام باتوں سے بچائیں، اپنے ہاتھ و پیر کو حرام چیزوں سے بچائیں۔ یہ کھانے اور پینے کو ترک کرنے سے زیادہ اہم ہے، کھانے پینے کو ترک کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ حدیث سے فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوک و پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بھوک و پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، جو روزہ رکھے نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص کا بھوک و پیاس اللہ کو قبول نہیں، ایسے شخص کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے شخص کے بھوک و پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت اور گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوک و پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ رمضان کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث سے فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم۔ فرمایا آپ نے پانچوں وقت کی نمازیں اپنے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ جمعہ دوسرے جمعہ تک ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارے کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارے کا مہینہ ہے۔ اور حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے ایمان پر قائم رہتے ہوئے، شرط اگر ایمان نہیں ہے اس روزے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان پر قائم رہتے ہوئے، اللہ کو ایک جانے ایک مانے، اللہ کو اس کے کاموں میں ایک جانے، اللہ کو اپنی ساری عبادتوں میں ایک جانے، اللہ کو اس کے مقام مرتبے میں ایک جانے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے۔ دوسری شرط وہ احتساباً، نیت کیا ہو؟ ثواب، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں، اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے جو رمضان کے روزے رکھے گا، دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ فلاں شخص بڑا پرہیزگار ہے، فلاں شخص نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور شخص نیک ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو رمضان کے روزے رکھا اخلاص کے ساتھ، ایمان اور اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس روزے دار کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی، جس روزے دار کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی، ایمان اور اجر و ثواب کے حصول کا غرض، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مقصد، جس شخص کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ فرمایا آپ نے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر جیسے ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پر جیسے ایمان ہونا چاہیے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو تراویح کی نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تراویح کی نماز، حدیث آپ فرماتے ان العبد اذا سلم على الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، رواہ احمد۔ فرمایا اپنے بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے، حتى ينصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، یعنی آخری رکعت تک جو مقتدی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا رہا آخری رکعت تک، کتب له قیام لیلہ، اس بندے کے نام اعمال میں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.